Hello, welcome all in this session. But in this session, we are going to have some of the example while using the rules, whatever we studied in our last session, while changing any sentence from active voice to passive voice or vice versa, or passive voice to active voice. So we were talking about the tense. That's like if there is any sentence, if there is any sentence in present indefinite, then while changing it from active voice to passive voice, we have to keep remember that the tense of this sentence should be not changed. And the another thing, the object will take the place of subject in the passive voice, और जो active voice का जो subject है वो passive voice में passive voice वाले sentence का object की जगह लेगा. एक्टिव वॉइस और सब्जेक्टिव पे अगर प्रोनाउन है तो वो कैसे जगह बदलेगा, ये सभी को बता ही दिया गया है. क्यों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. So already in our last session, already we had example of present indefinite. Now that time we were talking about the present continuous. Let's say if I change this sentence, he plays football, into the present continuous, then he's playing football. He is playing football. Let me write. He's playing football. This is in. Acha, can you tell me that key in which, whether it is active in active voice or passive voice? Sir, active voice. Active voice. कैसे पता चला? How you are able to identify? Yes, Sir. Is as a subject. The pronoun is as a subject. because अनुराग उपाध्याय, what you telling? कैसे आपको पता चला है whether it is an active voice or passive voice? What you are looking for? क्या देखते हैं आप? Sir, the pronoun is working as subject. नहीं, ये कहाँ पे pronoun is working as a subject. Okay, pronoun is working as subject. अगर pronoun के जगह noun होता तो क्या change हो जाता? गौरव तिवारी, how you are able to identify whether it is an active voice or passive voice? Sir, here the noun, the pronoun is acting as a noun, and the object is. Again, you are also not going on the. Yes, Muskan. Try you. You also try, please. मैंने दो चीजें बताई थी. Yes, गौरव तिवारी, try again. सर यहाँ पे SVO का रूल फॉलो किया जा रहा है. SVO हमेशा SVO रहेगा. अगर पैसिव वॉइस अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम में सब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल. यही तो है. यस सर. सब्जेक्ट वी आपका प्लेड, ओ आपका ऑब्जेक्ट ये हो गया. पैसिव वॉइस में SVO, ओ है वो S बन जाता है, S जो है O बन जाता है, लेकिन रूल तो आपको SVO ही तो रहता है. तो इससे थोड़ा पता चलेगा व्हाट यू हैव टू डू, कि आपको क्या देखना है. सबसे पहली चीजें तो आप जो सिंपली आप जान सकते हैं, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो वो पैसिव वॉइस में नहीं है. ठीक है, लेकिन ये 100% रूल फॉलो करेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म होना पैसिव वॉइस नहीं, वो एक्टिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है. सबसे पहली बात, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इस वजह से पैसिव वॉइस नहीं है, ये तो 100% है. बिकॉज कोई भी पैसिव वॉइस आपका बिना थर्ड फॉर्म के आएगा नहीं. लेट्स से, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस लिख दूं, he has played the, क्या ये पैसिव वॉइस है जो सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट द पैसिव वॉइस. अब इसको कैसे पता चलेगा? वो थर्ड फॉर्म वाला तो टेम्परेरी है, जो मेन है वो आपको ध्यान देना है. द एक्शन क्या हो रहा है उस सेंटेंस में, ये तो पता चल जाएगा सभी को ना. Yes, sir. Yes, sir. एक्शन Yes, sir. जो सब, which is the subject, which is the object and which is the verb, ये तो सभी को पता चल जाएगा. सब्जेक्ट ही सबसे पहले आएगा ना.
Yes, sir. You Yes, all Yes, here you all need to observe that कि जो सब्जेक्ट है क्या एक्शन वही कर रहा है. Who is doing the action? Who is performing the action? अगर सब्जेक्ट आपका एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो दैट इज एन एक्टिव केस, दैट इज एन एक्टिव वॉइस. ओके, अभी आप प्लेइंग, ये प्लेइंग Yes, एक्शन जो है किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, फुटबॉल द्वारा या ही? Sir, he. sir. ही. तो यहाँ पे जो ही है वो प्लेइंग, ही कौन, ये प्लेइंग कौन परफॉर्म कर रहा है? ही. और ही क्या है? ही ऑब्जेक्ट की जगह पे या सब्जेक्ट की जगह पे है? Subject. That means कि subject is performing the action. That means this is in active voice. इस सेंटेंस की बात किया जाए, प्लेड जो आपका मेन वर्ब है आपका, ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है? ही. यानी ही भी सब्जेक्ट की जगह पे है, तो दैट मीन्स कि इन दिस सेंटेंस आल्सो ही इज परफॉर्मिंग द मेन वर्ब. जो मेन एक्शन है वो कौन परफॉर्म कर रहा है? ही यानी सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है. तो दैट मीन्स कि दिस इज एन एक्टिव वॉइस. बट इफ यू टॉक अबाउट द सेंटेंस दैट इज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा जा रहा है, इसको देखते हैं. फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम. व्हाट इज द मेन एक्शन इज बीइंग डन इन दिस सेंटेंस? कौन सा एक्शन हो रहा है यहाँ पे? प्लेइंग का ही. प्लेड इसीलिए तो आया है, प्ले एक्शन हो रहा है. ये प्ले कौन परफॉर्म कर रहा है? ये सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है? इसका सब्जेक्ट तो फुटबॉल है ना, तो क्या फुटबॉल परफॉर्म कर रहा है प्ले? हु इज परफॉर्मिंग द प्ले? No, sir. No, sir. यहाँ पे सब्जेक्ट ही परफॉर्म कर रहा है. द एक्शन इज बीइंग डन बाय द ऑब्जेक्ट. जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट नहीं कर रहा है. एक्टिव वॉइस में जो एक्शन है वो हमेशा सब्जेक्ट करेगा, बट पैसिव वॉइस में जो एक्शन है इट विल बी डन बाय द ऑब्जेक्ट. ध्यान रहेगा बेटा सभी को. Yes, sir. एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पहचान ले जाएंगे आसानी से अब. Yes, sir. Yes, sir. There are many examples of how should I think. Okay, move ahead on the next example. Yes, I was talking about the he is playing football. He is playing football. This is in present continuous. Present continuous. Let me talk there again. He is playing football. While changing the voice of this sentence, you have to change this. You have to take this object on the subject. इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे और इस सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे. करेंगे ऐसे ना? Yes, sir. फुटबॉल. अब कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस है? ही इज प्लेइंग फुटबॉल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. तो प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर तो यूज करेंगे, ये नेसेसरी है पैसिव वॉइस में. तो फुटबॉल के लिए व्हिच वर्ड यू आर गोइंग टू यूज? इज, एम और आर? इज, एम या आर? क्या होगा? Fुटबॉल Sir, is. If it is in continuous tense, then you have to use being. You have to use a word जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके. ing फॉर्म आप वर्ब का ing फॉर्म रहेगा, then only this sentence should be considered as a continuous sentence. तो चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, वो कंटिन्यूअस अगर है तो बीइंग जरूर यूज होगा. ओके बेटा, बी जो आपका एक तरीके से आपका कहीं आपको जब बड़े होंगे तो आपको बताया जाएगा बी इज ऑल्सो काइंड ऑफ वर्ब. फुटबॉल इज बीइंग, सॉरी let me take this one. फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय ही. जब ऑब्जेक्ट की जहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा? हिम. फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम. आई होप समझ में आ गया होगा. Yes, sir. Now moving ahead. Now moving ahead on the next. The next one is the present perfect. Present perfect में क्या होता है? He has won the match. अगर इसी सेंटेंस का अगर प्रेजेंट परफेक्ट बनाना हो, he is playing football, तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट कौन बना पाएगा?
इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन बदल पाएगा? हु कैन चेंज दिस सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? यस सर। मुस्कान यादव के अलावा भी कोई कर सकता है? अभिषेक यादव, यस मुस्कान बताइए बेटा। Sir, he has played the football. He has Played the football. बेटा pardon again, pardon please. He has Sir, play the football. बेटा गाड़ी जा रही है, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, बहुत तेज आवाज आ रही थी। चलिए फिर से बताइए एक बार। Sir, he has played the football. ठीक है बेटा। अभिषेक यादव आप बताइए whether मुस्कान is correct or incorrect, right or wrong? सर इनएक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। नहीं, इन्होंने जो बोला एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस छोड़ दीजिए। अभी इन्होंने बोला, क्या बोला बेटा, एक बार फिर से बोलिए। Sir, he has played the football. He has played the football, ये बोल रही हैं। क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट he is playing football को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना था? एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस किसी तरीके से, एक्टिव या पैसिव में? क्या है, इन्होंने जो सेंटेंस बोला वो ग्रामेटिकली सही है। He has played the football, हैज के बाद प्ले आता है, प्लेड होगा। हैज के बाद प्ले आता है। आई एम आस्किंग, क्यों प्राची? हैज एंड हैव के बाद प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही हैज प्लेड द फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुका है। यस सर। ओके, यस सर। ही हैज प्लेड द Yes, sir. फुटबॉल। I'm writing he has played the football। इन्होंने एक टेंस बोला, एक सेंटेंस बोला, he has played the football। Now you all able to identify, now you have to observe that ki whether this sentence is in active voice or passive voice। For this what you have to do, first the first question is which action is being done। ये देखो, ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म से पैसिव वॉइस मत बोल देना तुरंत। पैसिव वॉइस अगर ये है कि एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस हो सकता है, कंफर्म नहीं है बट हो सकता है। which action is going in this sentence? आकृति आप ही बताइए, कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम परफॉर्म किया जा रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है यहाँ पे? प्लेइंग का काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है? ये खेलने का काम कौन कर रहा है? खेलने का काम ही कर रहा है। दैट मीन्स कि जो खेलने का काम जो कर रहा है वो कौन सी जगह पे है, सब्जेक्ट की जगह पे या ऑब्जेक्ट की जगह पे है? सब्जेक्ट। तो ये एक्टिव वॉइस में होगा। अगर सब्जेक्ट आपका एक्शन परफॉर्म करे तो वो एक्टिव वॉइस होगा या पैसिव वॉइस होगा? क्या होगा बताइए, कोई भी बताइए। एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट आपका एक्शन परफॉर्म करे तो दैट इज एन एक्टिव वॉइस, एंड हियर द एक्शन, द प्लेड एक्शन इज बीइंग डन बाय द ही द्वारा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, क्या खेला जा रहा है, कौन सा? ये खेलने का काम हो रहा है, लेकिन क्या खेलने का काम हो रहा है? फुटबॉल। फुटबॉल। इफ यू चेंज दिस, ये एक्टिव वॉइस है, ये तो कंफर्म हो गया। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब ध्यान रखना है, इसका टेंस नहीं चेंज होना चाहिए, इसका टेंस नहीं चेंज होना चाहिए। तो पहले ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जहां पे आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है? द फुटबॉल। उसके बाद कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। क्या है ये? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब बस इतना, तीनों में से एक बताना है। टेंस। क्या है बताइए, कोई भी बताइए। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। हैज एंड हैव यूज्ड फॉर द प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस अगर होता, अगर हैड होता तो वो पास्ट टेंस होता। क्या होता? पास्ट टेंस होता। लेकिन हैज है, हैज इज यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस। तो दैट मींस कि प्रेजेंट टेंस में इज एम आर यूज होगा, तो ये द फुटबॉल क्या होगा? द फुटबॉल इज या एम या आर, क्या होगा? The football क्या होगा? has क्या होगा? the football has हैज बीन।
फुटबॉल देखो, द Has हेल्पिंग been. वर्ब इज एम आर के अलावा, लेट्स से अगर आपका इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस होता तब तो वहां पे इज एम आर आपने यूज किया था, बट इफ इट इज इन परफेक्ट टेंस द हेल्पिंग वर्ब इज एम आर की जगह पे हैज या हैव का ही यूज करेंगे, बट एज पर द सब्जेक्ट, या द फुटबॉल आपका सिंगुलर है तो हैज यूज होगा या हैव यूज होगा ना, इज एम आर तीनों नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा? Has. करेक्ट, हैज। द फुटबॉल हैज, अब आपको पता है हैज या हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये रूल है कहीं पे भी, लेकिन हैज एक रखना होता है, उसका सेंस हो तो बात, अगर हैज यूज, इफ हैज बीन यूज्ड एज ए वर्ब, देन आफ्टर द हैज, अगर हैज को मेन मतलब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया गया है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की मेन वर्ब थर्ड फॉर्म जरूर आएगी, तब द फुटबॉल हैज बीन, और आपको पता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? हैज बीन प्लेड बाय हिम। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे देख लीजिए, हैव यू मेट हिम, हैज ही बीन मेट बाय यू, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अभी आप अगर सिंपल सेंटेंस देखेंगे तो इट वुड बी मोर क्लियर। ही हैज प्लेड द फुटबॉल, द फुटबॉल को यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया गया, द फुटबॉल हैज बीन प्लेड, ये आपका हैज तो आपका लगेगा ही, परफेक्ट टेंस है, इस वजह से हैज के बाद थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म हैज बीन होगा। द फुटबॉल हैज प्लेड, ये तो गलत सेंटेंस बन जाता है ना, तो हैज बीन प्लेड, द फुटबॉल हैज बीन प्लेड, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में यूज करेंगे। हैज के बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, इसलिए हैज के बाद बीन लगा। द फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय हिम। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसी तरीके से जब आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? ही हैज बीन प्लेइंग द फुटबॉल, ऐसे होगा ना, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता है। अगर आप सिंपल सेंटेंस अगर आप बोलेंगे एक्टिव वॉइस में, तो ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 आवर, आप ऐसे तो बोलते हैं। एक टेंस यही, एक ही टेंस बता दूंगा, उसी से पास्ट फ्यूचर सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 hour. Let's say this is the sentence. I have written a sentence. He has been playing football for 1 hour. 1 घंटे से खेल रहा है, ठीक है। Now look into this. इसको देखने के लिए which action is going done, which कौन सा एक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है? Which action is being done here? Playing. कौन कर रहा है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? Subject. यहाँ पे ही है, ही कर रहा है ना, किस पे कर रहा है? फुटबॉल। दैट मींस फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट। तो अभी क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करते समय ऑब्जेक्ट को आप लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे। अच्छा, ये चेक करने के लिए क्या ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव? आपने देखा सब्जेक्ट आपका एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो दैट मींस इट इज इन एक्टिव वॉइस। और टू चेंज इन पैसिव वॉइस व्हाट वी हैव टू डू? सबसे पहले ध्यान देना टेंस ना चेंज हो, और जो आपका प्रोनाउन है उसको भी जगह चेंजेस जगह के हिसाब से उसको यूज करना है। तो पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द फुटबॉल। क्या है? द फुटबॉल ही तो है, ओनली फुटबॉल है, ओनली फुटबॉल। फुटबॉल हैज बीन, हैज के बाद तो बीन आना है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता है, इसीलिए आपका यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बीन यूज हुआ था, क्योंकि प्लेइंग डायरेक्टली कंटिन्यूअस दिखाने के लिए आप कंटिन्यूसली है, अगर किसी कार्य को आप जारी रखने के लिए आपको आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा, ये मस्ट है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। तो एक्टिव वॉइस में भी आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया, बट परफेक्ट है इसलिए हैज था, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पर अब हैज के बाद थर्ड फॉर्म होना चाहिए, इसलिए बीन यूज किया गया था, इसलिए बीन यूज किया गया था। पैसिव वॉइस में भी सेम इसी तरह, फुटबॉल हैज बीन, अब आपको आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ेगा,
हैज बीन। अब पैसिव वॉइस में आपको पता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होनी चाहिए, लेकिन पैसिव वॉइस में आपको टेंस नहीं चेंज होना चाहिए, कंटिन्यूअसली भी दिखाना है। तो बीन के बाद आपको आईएनजी फॉर्म कहीं ना कहीं तो यूज करना पड़ेगा। बीइंग, फुटबॉल हैज बीन बीइंग प्लेड बाय हिम। क्या हुआ यहाँ पे? ही को आप ऑब्जेक्ट की जहां पे ले आए, फुटबॉल को आप सब्जेक्ट की जहां पे ले आए। क्यों बेटा? प्लेइंग को आप प्लेड की Yes, sir. तरह थर्ड फॉर्म में यूज कर लिए, और आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहां से पहचान भी हो गया। समझ में आ गया? तो these are the Yes, sir. these are the things। अभी अब बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। नाउ लुक ऑन द टेबल, इन दिस टेबल। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें डज या डू अगर आता है या नहीं भी आता है, then in the passive voice you have to use is, am, are. But if the sentence is in the present continuous, then you have to use is, am, are plus being. Ram, the football is being played by him, by Ram। कुछ भी हो सकता था ना, प्रेजेंट परफेक्ट है। He has played the football, मैं ही के बजाय आपने राम बोल देता हूं, मैं राम यूज करूंगा। राम हैज प्लेड फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल चुका है, यही तो हुआ। जब इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा? द फुटबॉल हैज बीन, द फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय राम। हैज बीन या हैव बीन हो जाएगा। हैज हैव जो है हैज बीन या हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रहेगा ना। Yes, sir. प्रेजेंट परफेक्ट Yes, sir. कंटीन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन जो होता है, हैज या हैव बीन प्लस बीइंग। बहुत रेयर केस में आपको ये सेंटेंस मिलता है, बात अलग है। जल्दी आपको इस तरह सेंटेंस नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मिले तो आपको करना आना चाहिए। हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था, उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट वहां पे डज डू के जहां पे डिड यूज होता है एक्टिव वॉइस में, बट इन द पैसिव वॉइस वाज या वर कई बार बिना डिड के भी यूज होता है। जैसे आई प्लेड द फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला, तो इसमें डिड का यूज नहीं होता है। बट आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाज वर यूज होगा। आई प्लेड द फुटबॉल नहीं, द फुटबॉल वाज प्लेड, द फुटबॉल वाज प्लेड बाय मी, आई की जगह मी हो जाएगा। तो इन द पास्ट इंडेफिनिट यू हैव टू यूज वाज और वर। इट इज नॉट अ वेयर, इट इज अ वर। कई लोग इसको वेयर पढ़ते हैं ना, वेयर नहीं, इसको वर पढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर जो है वाज वर प्लस बीइंग हो जाता है। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन के बजाय हैड रहता है, तो जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हैड बीन हो जाता है। ओके, Yes, sir. इन द सेम वे पास्ट परफेक्ट हैड बीन प्लस बीइंग, उसके बाद वर्ब की मेन वर्ब के प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, ये तो अंडरस्टूड है। ये आप इसको बताने की जरूरत नहीं है, मैं बता नहीं रहा हूं, ध्यान रखिएगा इसको। तो इन दिस वे यू ऑल कैन चेंज द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस इन द पैसिव वॉइस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस और वाइस वर्सा। आई होप यू ऑल आर एबल टू। अभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जांपल में आप लोग चेंज कर ले जाएंगे। In the next class we would be discussing the exercises of your book. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी नेक्स्ट क्लास का आप इंतजार किए बगैर अगर आप एक्सरसाइज स्वयं सॉल्व कर लें तो इट वुड बी बेटर फॉर यू ऑल, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू ऑल उसमें जो एक्सरसाइजेस हैं आपको देखना है, आइडेंटिफाई करना है, एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में, ये सब बड़े आसानी से कर लेंगे। तो व्हाट एवर द एक्सरसाइजेस यू ऑल कैन सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व सो दैट वी कैन फिनिश द सिलेबस इमीडिएटली। Yes, sir. So this is for today. Now I have to wind up the session because many of the students is also not there. So अभी जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो मुझे अपार्ट बियॉन्ड द बुक बताना था ऑलरेडी आई हैव टोल्ड। जिनको लेना था वो है, जिनको आता रहा होगा या जिनको नहीं जानना हुआ है वो नहीं क्लास लिए, हो सकता है कुछ लोगों रिकॉर्डिंग बाद में देखें। इन द नेक्स्ट क्लास आई वुड बी सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस। अगर एक्सरसाइज आप लोग स्वयं सॉल्व करें तो इट वुड बी बेटर फॉर यू ऑल। देन इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर वी वुड बी स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक। सो दिस इज फॉर टुडे। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स? No, sir.
No, sir. Okay, then No, sir. goodbye everyone today. Goodbye. Sir, goodbye. Goodbye.